Hello friends, hope you all are doing great today. This is my second video explaining the Hindi lesson for students and anyone who is interested to learn and appreciate the Hindi literature. Today I am going to explain chapter 11 from the book Malhar. This poem is called Chetak Ki Veerta. Since even for a normal Hindi speaker, this chapter has a few difficult words, so I will explain this chapter in both English and Hindi so that students throughout India can understand it in a simple and easy way. छात्रों और छात्राओं, आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम मल्हार पुस्तक के पाठ 11 चेतक की वीरता का स्पष्टीकरण करेंगे। मैं जानता हूँ कि कई हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए भी यह कविता थोड़ी सी कठिन साबित होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस कविता को आप सभी तक सरल हिंदी व अंग्रेजी भाषा में पहुंचा सकूं। If there is any other poem or lesson which is troubling you in Hindi, please comment the chapter name along with the class, author and the PDF link if possible. I will try my best to create the chapter explanation video starting from the most requested ones. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि चेतक राजस्थान के मेवाड़ राज्य के महासम्राट महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त घोड़ा था। महाराणा प्रताप वही शूरवीर और पराक्रमी सम्राट हैं जिन्होंने आतंकी मुगलों के सम्राट अकबर को भी नाको चने चबवा दिए थे, और वह भी लोहे के। अत्याचारी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए 1576 के युद्ध में चेतक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कविता श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित काव्य कृति हल्दी घाटी का एक अंश है जो चेतक की वीरता पर केंद्रित है। Before I start explaining this chapter, you all need to know a few basic things. Maharana Pratap, the king of Mewar, Rajasthan, was one of the greatest warriors who fought against the foreign invaders like Akbar and tried to save our mother India. His trusty, loyal and devoted horse Chetak played a pivotal role in the Battle of Haldi Ghati, which happened in the year 1576. This poem is part of a prose called Haldi Ghati, which is written by Shri Shyam Narayan Pandey. If you like my videos, then like and comment on them and subscribe to my channel. इस वीडियो के अंत में महाराणा प्रताप को समर्पित एक जबरदस्त वीर रस का गीत है, उसे जरूर सुनिएगा। At the end of this video, there is an amazing song dedicated to the great Maharana Pratap. Do listen to that. Kindly comment me some improvement tips. So let us try now to understand this beautiful poem in both Hindi and English. I will be explaining para by para, and the first explanation will be given in Hindi and the next one in English. Chetak ki veerta, bravery of Chetak. Veerta means bravery. रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। रण का मतलब होता है युद्ध, सो रण मीन्स बैटल एंड बीच मीन्स इन द मिडिल। चौकड़ी का मतलब होता है लंबी लंबी छलांगे, भर भर कर मतलब मारना। चौकड़ी मीन्स गैलॉप ऑफ द हॉर्स एंड गैलॉप इज द लॉन्ग जंप टेकन बाय हॉर्स। निराला मीन्स अजीब, अनोखा, स्पेशल और यूनिक। पाला था का मतलब होता है मुकाबला होना, प्रतियोगिता होना और कंपटीशन। युद्ध के बीच में लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ चेतक बहुत ही निराला, अनोखा और अजूबा लग रहा था। चेतक की तीव्र गति देखकर आज ऐसा लग रहा था मानो चेतक का हवा से आज मुकाबला हो रहा हो। In the middle of the battle, when Chetak was taking gallops, he was looking very unique.
It felt like he is having a competition with the wind in terms of swiftness. गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था. So tan means body या बदन, कोड़ा means चाबुक or whip which is used to hit the animal so that they can move forward. अरी का मतलब होता है दुश्मन, मस्तक माने सिर. अरी मीन्स एनिमी, मस्तक इज हेड. पहली ये दो पंक्तियां कह रही हैं कि चेतक इतना समझदार था कि महाराणा प्रताप कभी भी उसे चाबुक से नहीं मारते थे, क्योंकि वह खुद ही परिस्थिति के अनुसार अपनी दिशा बदल लेता था. युद्ध के मैदान में जब वह दौड़कर छलांगे मार रहा था, तब छलांगों के लिए वो अपने दुश्मनों के सर का सहारा ले रहा था. तो ऐसा लग रहा था कि वह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर उड़ रहा था. So the first two lines say that Chetak was so intelligent that to guide him, Maharana Pratap never had to whip him. So now, while running in the battlefield, he was jumping and stepping on the heads of the enemies and then jumping again and again in a similar fashion. It felt like instead of walking on the ground, he was actually flying. जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था. So here they are explaining how smart he was. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो चेतक कितना स्मार्ट था. तनिक मतलब होता है हल्का सा, थोड़ा सा, लिटिल बिट. बाग का यहाँ पर मतलब होता है लगाम, रेन, which is used to control the animal, जिससे घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है, जो उनके गले में लगी होती है. हिली मीन्स मूव, हिलना. सवार मीन्स राइडर. इन दिस केस इट इज महाराणा प्रताप. सवार का मतलब होता है बैठने वाला, तो चेतक पर बैठने वाला यानी कि महाराणा प्रताप. उतली का मतलब होता है आंखों का वो काला भाग जो हमें नॉर्मली दिखता है, और इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्यूपिल. फिरी मीन्स हिलना, मूव, मुड मीन्स टर्न. कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि चेतक के पास में जब भी कोई दुश्मन आता था तो उसे तुरंत पता लग जाता था और वह महाराणा प्रताप को दुश्मन से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाता. और इतना फुर्तीला था कि महाराणा प्रताप की आंखें इधर से उधर फिरी नहीं कि तब तक चेतक खुद मुड़ जाता था. मतलब कि महाराणा प्रताप जितनी देर में इधर उधर देखते थे उतनी देर तक तो चेतक मुड़ ही जाता था और उनको बचा लेता था. इतना बहादुर और इतना चौकन्ना था वो. The writer is telling in the first two lines of this para that Chetak was so alert that even if the reins were moved a little bit, he would immediately run off to safety with the rider. He was such an alert horse. In these next two lines, the writer is trying to give an example of the alertness of Chetak. So here he is telling that Chetak used to take turn even before getting a hint from the eyes of महाराणा प्रताप. कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में. So in these four lines he is talking about the talent of Chetak. कौशल means कुशलता, skill. दिखलाया means showed. चालों में means जिस तरह से वो चल रहा था, दौड़ रहा था, the way he was running from here to there. भाले का मतलब होता है ये वाला, ये हथियार भाला. भाले means spear, which is this, which Maharana Pratap is holding in this picture. निर्भीक मतलब बिना भय के, विदाउट फियर. ढालो का मतलब होता है कवच. ढालो मीन्स शील्ड. सरपट माने तेज. सरपट मीन्स वेरी वेरी फास्ट. करवालो का मतलब यहाँ पर होता है तलवारों. करवालो मीन्स सॉर्ड्स. कवि कहना चाहते हैं कि
चेतक ने अपना युद्ध कौशल दिखलाया है उसकी चालों में, क्योंकि घोड़ा है तो वो ऑब्वियसली भागने में एक्सपर्ट है, तो घोड़ा भाग कर ही अपनी कला दिखा सकता है। चेतक इतना कुशल था कि उसे भयानक भालों का भी डर नहीं था। उन भालों को छका कर भी वह इधर उधर भाग लेता था। बिना किसी डर के वह दुश्मनों की ढालों और तलवारों के बीच में से भी तेजी से दौड़कर निकल जाता था। Being a horse, his main skill was running, so that is what he could help his master with. In these two lines, the writer is telling that Chetak showed great skills in his gallops by jumping over terrifying enemy spears. In these next two lines, the author is telling that Chetak used to fearlessly charge swiftly towards the enemy, no matter how many shields or swords the enemy was holding. है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरी मस्तक पर कहा नहीं। हिंदी वालों को तो ये लाइन पूरी समझ में आ गई होगी चारों की चार। अब मैं इंग्लिश वालों के लिए बोलता हूँ। यही रहा मीन्स वॉज हियर, यहाँ नहीं मीन्स नॉट हियर, वही रहा मीन्स ओवर देयर, वहां नहीं मीन्स नॉट ओवर देयर, जगह मीन्स प्लेस. So the poet in these four lines is trying to talk about the speed of Chetak. So here they are just trying to say he was moving so fast that one moment he was here and the next moment he wasn't. One moment he was over there and the next moment he wasn't. He was jumping all over. You could feel that he's hitting almost all the enemies on the head. बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया. बढ़ते मीन्स मूविंग, नद का मतलब नदी और रिवर, लहर मीन्स वेव, विकराल मीन्स भयंकर मॉन्स्ट्रस, वज्रमय मीन्स वह बादल जिसमें गरजने से पहले बिजली दिखाई देती है, उस बादल की तरह वह दुश्मनों की सेना पर बरस गया, गरज गया. ठहर गया मीन्स स्टॉप्ड. Chetak was moving like a forceful wave of a river. He used to keep going and then stop. And then again he used to take the form similar to that of a monstrous thundering cloud before downpour. Here the poet is trying to emphasize that his attacks on the enemy felt like the thundering sound of a monstrous lightning cloud. भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टोपों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग. So भाला means spear, गिर गया means fell down, गिरा again means fell, निशंग means sword. निशंग का मतलब यहाँ पे तलवार होता है. है means घोड़ा और हॉर्स. टापो मीन्स जो घोड़े के पांव के नीचे होता है ना, घोड़े का खुर जिसको बोलते हैं. सो टापो मीन्स हुफ. खन मीन्स झंझनाना, शेकिंग और वाइब्रेटिंग. अंग मीन्स बॉडी पार्ट्स. वेरी मीन्स दुश्मन और एनिमी. समाज मीन्स ग्रुप इन दिस केस. दंग मीन्स अमेज्ड. घोड़े का ऐसा रंग मीन्स such power by the horse. So in this last paragraph he is trying to show the condition of the enemy army. After the attack of the Chetak, spear and swords of the enemy had fallen down. The whole body of the enemy was shaking due to the vibrations created by the hit from the hoof of the horse. The whole army of enemy was amazed after seeing such an incredible performance by the horse. जब चेतक ने सब पे हमला किया तब उन लोगों का भाला, तलवार ये सब के सब गिर गए और घोड़े की खुर से मार खाने के बाद दुश्मनों का अंग अंग कांपने लग गया था. दुश्मनों की सेना घोड़े का ये जलवा देखकर स्तब्ध रह गई थी, दंग रह गई थी. इस कविता को लिखने वाले हैं श्याम नारायण पांडे.
Let us learn a bit about the author or the poet श्याम नारायण पांडे। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। सो श्याम नारायण पांडे वॉज फेमस फॉर इंस्पिरेशनल एंड नेशनलिस्ट पोएम्स। These poems used to create a feeling of nationalism among the people of India. As I mentioned earlier, Chetak ki Veerta is part of a bigger prose called Haldi Ghati. So this Haldi Ghati was published in the year 1939. Shyam Narayan Pandey was born in the year 1907 and died in the year 1991. As we can see that this poem Haldi Ghati was created during the final years of our freedom struggle. Back then, this poem had played its part in inspiring the freedom fighters. I want to end this video by dedicating an amazing song in the honor of this legendary warrior. के तेज जैसा चमके जिसका भान, लालों में लाल भारत माता का लाल। सूरज के तेज जैसा चमके जिसका भान, लालों में लाल भारत माता का लाल। जिसने सुख को त्याग कर धर्म अपना मान कर, जिसने सुख को त्याग कर धर्म अपना मान कर दिया बलिदान जीवन मातृभूमि के नाम पर। वो है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। Maharana Pratap's death anniversary is due in 15 days, on 19th of January. I hope this small dedication of mine reaches to many Indians by then, so that they remember and feel even more respect for the warriors of the past who always fought for the freedom of the nation. If you like my video, kindly subscribe to my channel. Thank you so much for watching this full video.